Hello everyone, I am Lavanya and I welcome you all to the very first lecture on carbon and its compound for class 10. Let's quickly dive into the lecture. The topics that we are going to discuss in this chapter are introduction, the very first thing. Oh wait, should I zoom in like this? Yeah, this is better. So we are going to discuss the introduction, the covalent bond, versatile nature of carbon, chemical properties of carbon compounds, important carbon compounds, soaps and detergents. This is going to be a long chapter as well as very important for your boards. It will carry a very high weightage in your board exam. So please pay a lot of attention here. Take out a notebook and a pen and do jot down all the important points. So let's begin. So the topics that are included in this chapter are, firstly, introduction. Introduction. Then covalent bond. We'll know what covalent bond is, its nature, how it is formed, etc. फिर versatile nature of carbon. How is it versatile? How does it perform different jobs? देखते हैं. Then chemical properties of carbon compounds, important carbon compounds, and then soaps and detergents. That's all. So it is given very briefly. Underneath this you have various topics, subtopics you can say. Let us discuss them one by one. First, introduction. So let me zoom in and then. Compounds are of two types, organic compounds and inorganic compounds. Compounds दो तरीके के होंगे, organic compounds and inorganic compounds. Organic compounds are those compounds जो कि कार्बन के बने होते हैं. The compounds simply made up of carbon are organic compound. Inorganic compounds are all those compounds that are not made up of carbon. कार्बन को छोड़ के किसी भी और एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक को छोड़ के बाकी सारे कंपाउंड्स किस में आ गए? इनऑर्गेनिक में. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन. Organic compounds are made up of carbon and form the basis of all living organism. Why is it said like that? Carbon हमारे पूरे body में है, in the form of different compounds, in the form of nutrients like carbohydrates, in the form of different compounds, different enzymes. हर जगह पे carbon है. So carbon is a vital part of our living. बिना carbon के we cannot live. We cannot think of a living structure without carbon. तो कार्बन एक ऐसी एसेंशियल बैकबोन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को थ्राइव कराती है. सो दैट इज़ वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं आज इन अ लॉट ऑफ डिटेल. देन कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक एंड कोवेलेंट. यू माइट हैव स्टडीड दिस अर्लियर. मे बी मैंने शायद किसी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है अबाउट द आयोनिक कंपाउंड्स. वन इज़ आयनिक कंपाउंड एंड वन इज़ कोवेलेंट कंपाउंड. आज तो वी विल प्राइमरली डिस्कस कोवेलेंट कंपाउंड्स, बट लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट एन आयनिक कंपाउंड इज. वी नो दैट अ कंपाउंड इज मेड. हाउ अ कंपाउंड इज मेड? सो व्हेन अ कंपाउंड इज मेड, ईदर इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड. दो चीज़ें होती हैं, या तो गेन और लॉस होता है या तो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. सो व्हेन देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू से दैट द कंपाउंड इज आयनिक. आयंस का जब आयंस बनते हैं, आयंस कब बनेंगे? ईदर यू गेन, ईदर द एलिमेंट गेन्स द इलेक्ट्रॉन और द एलिमेंट लूजेस द इलेक्ट्रॉन. व्हाई डज इट डू सो? क्योंकि हर एलिमेंट को चाहिए एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. वी मस्ट हैव डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट और मे बी सम प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें केमिस्ट्री के बेसिक्स डिस्कस किए गए थे. इन दैट आई मस्ट हैव डिस्कस्ड आयनिक कंपाउंड्स तब बनेंगे जब कोई एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे. क्यों करेगा? टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. बिकॉज एवरी एलिमेंट वांट्स कि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, मेरा जो शेल कॉन्फिगरेशन है, वो ऐसा रहे, इनर्ट रहे. एवरी वांट्स टू गो टूवर्ड्स इनर्टनेस. इसीलिए वो गेन या लॉस करता है.
जो कंपाउंड्स गेन या लॉस शो करते हैं, गेन या लॉस से बने होते हैं, किसी आयन ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड्स का एक बेस्ट एग्जांपल है NaCl या MgCl2। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट, वी ऑल नो। अब इसमें सोडियम ने क्या किया, इसको हमने अलग किया तो Na+ और Cl- हमें मिलेगा। ये प्लस और माइनस क्या है? सोडियम कैटायन है और क्लोरीन एनायन है ना। तो ये कैटायन एनायन कैसे बने? क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए उसको एक पॉजिटिव चार्ज मिला और वो सोडियम कैटायन बन गया। क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो उसने लॉस किया वो इधर इसने गेन किया, अब इसने गेन किया तो ये बन गया एनायन, नेगेटिवली चार्ज। ये दोनों आपस में बॉन्ड अगर बनाएं, Na और Cl आपस में बॉन्ड बनाएं तो वो क्या बन जाएगा? NaCl, जो कॉमन सॉल्ट है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे आयनिक कंपाउंड, कैसे आयनिक कंपाउंड बनते हैं एंड व्हाई आर दे इवन मेड, वो बनते ही क्यों हैं। नाउ स्ट्रेट अवे लेट्स कम टू कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, कैसे बनते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हियर इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें कोई दो एलिमेंट्स शेयर कर लेते हैं। कार्बन क्या करता है? हमेशा शेयरिंग से बनाता है बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। रीज़न, ऐसा कार्बन क्यों करता है? क्या वो गेन नहीं कर सकता? क्या वो लॉस नहीं कर सकता? इसका आंसर हमें मिलता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। लेट अस कम स्ट्रेट टू दैट एंड देन वील डिस्कस द फर्दर थिंग्स। So here's for you the electronic configuration of carbon. This one here is the nucleus. ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। इसके बाहर होंगे हमारे शेल्स, K शेल, L शेल, M शेल एंड so and so forth. K वाली शेल में हम सबको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। क्योंकि सबसे पहले लेट अस डिस्कस कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6। सो देयर हैज़ टू बी 6 इलेक्ट्रॉन्स जिनको इन शेल्स में रहना है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बने हुए हैं। बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगली शेल में रहेंगे, यानी कि द L शेल। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है, अगर ये गेन या लॉस करना चाहे तो इसके पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको गेन करके ही बनाना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। या तो हम देखें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इनर्ट बनने के लिए इट रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। यहीं पे आती है कार्बन के साथ समस्या। 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं होता, मैक्सिमम कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, वो भी खतरनाक चीज़ है, उससे भी अनस्टेबिलिटी आती है। तो वो ना तो गेन कर सकता है ना ही लॉस कर सकता है। उसके पास एक सोल्यूशन बचता है विच इज शेयरिंग। तो इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और बेटर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कार्बन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता शेयरिंग के अलावा। इसीलिए वो अपने जैसे अलग एक और कार्बन से, अपने जैसे एक और कार्बन जिसके पास भी यही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके साथ ये क्या करता है? शेयर करने की कोशिश करता है या शेयर करता है, जिससे कि कार्बन कार्बन चेन्स बनती हैं। ऐसे ही जो एलिमेंट्स हैं वो ही ऐसा शेयरिंग वाला काम करते हैं। अदरवाइज कोई और इलेक्ट्रॉन, कोई और एलिमेंट होता जिसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो वो क्या करता? 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली लॉस कर देता, या 1 इलेक्ट्रॉन होता उसको भी लॉस कर देता, या 7 इलेक्ट्रॉन होते तो क्लोरीन की तरह गेन कर लिया होता। कार्बन के पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचता। कार्बन बेचारा एकदम बीच की स्थिति में है, ऐसी स्थिति में कि ना तो वो गेन कर सकता है ना ही लॉस कर सकता है। इसीलिए दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी स्पेशल। और इसी स्पेशलिटी की वजह से देयर इज़ अ कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्पेसिफिकली डील्स विद कार्बन, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी स्टडी पूरी अलग तरीके से होती है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई कार्बन के साथ ये प्रॉब्लम आती है और कार्बन इसको कैसे सॉल्व करता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट अस कम बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। दिस द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो बॉन्ड हम शेयरिंग से बनाते हैं
उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. जो बॉन्ड हम गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. एब्सोल्युटली क्लियर. देन वही बात कह दी है इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कि अगर कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहे तो उसके साथ क्या क्या समस्या आती है. द जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कार्बन इज टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंट मतलब 4, लास्ट में उसकी वैलेंसी क्या है 4. इट हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4. टेट्रावैलेंट मतलब होता है 4 की वैलेंसी होना, यानी कि लास्ट वाले जो अल्टीमेट शेल जो है उसमें क्या होगा, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय ईदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स C4+ बना ले या तो, और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स C4- बना ले. बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स. समस्या ये है. सो दिस मे बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि आखिर कार्बन ऐसा क्यों करता है. Because carbon is tetravalent and because it can not form ionic bond, ना तो ये गेन कर सकता है ना ही ये लूज कर सकता है. क्यों गेन नहीं कर सकता? क्योंकि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. लूज भी नहीं कर सकता क्योंकि इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू लूज द 4 इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कार्बन अपनाता है एक बीच का रास्ता और वो सोचता है कि ना गेन ना लॉस, तो मैं शेयर कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर कार्बन्स और विद द अदर एटम्स. हाँ, तो ये कार्बन एटम के साथ भी शेयर करता है, किसी अदर एलिमेंट के साथ भी शेयर करता है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. बिकॉज द गोल इन लाइफ, कार्बन का गोल क्या है अल्टीमेटली लाइफ में, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. जैसे हम सबका गोल है लाइफ में कुछ ना कुछ, कार्बन का ये गोल है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है और अब वो उसके लिए एक बीच का रास्ता अपनाता है विच इज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं. इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा इन्हीं सब एटम्स की चर्चा होती है. कौन कौन से एटम्स? हाइड्रोजन की चर्चा होती है, ऑक्सीजन की चर्चा होती है, देन यू हैव नाइट्रोजन, देन यू हैव क्लोरीन, समटाइम्स यू इवन हैव फॉस्फोरस. ज़्यादा ये सारे एटम्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाई देंगे. कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन दिखाई देगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी दिखाई देंगे. सो HH सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम. अब इसमें बताया कि हाउ इज द बॉन्ड गेटिंग फॉर्म्ड. सो लेट अस डिस्कस दिस हियर. सो लेट अस कीप इट असाइड और यहाँ पे डिस्कस करते हैं HH बॉन्ड विच इज़ H2 के बीच में हम कैसे बॉन्डिंग कर रहे हैं. सो H2 है ये. ओके, यू हैव 2 हाइड्रोजन्स, वन इज़ लाइक दिस, अनदर वन इज़ लाइक दिस. दोनों के एक ही शेल है और एक ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. अब इसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है ये सोचो. सो इसके जस्ट बाद आता है कौन, हीलियम, जिसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है 2. यानी कि शेल पूरी तरह से भरी रहे. तो अगर शेल पूरी तरह से भरे रहना चाहती है तो ऐसा होना चाहिए हाइड्रोजन हो और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो. ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम कर सकते हैं हम, दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं, अभी कोवेलेंट बॉन्ड का सिस्टम बता रहा है, आयनिक बॉन्ड के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि ये वाला जो है वो अगर लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन का तो H+ बन जाए, जो कि बनता है. ओके, हाइड्रोजन आयन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये फॉर्म होता है. ये अगर गेन कर ले तो हाइड्राइड आयन बना ले H-, ये भी होता है. पर यहाँ क्या हम गेन और लॉस की बात कर रहे हैं? नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी अगर ये शेयर करना चाहें तो कैसा होगा? ये तो अब गेन और लॉस कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है. बट व्हेन दे म्यूचुअली वांट टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके, दूसरा हाइड्रोजन भी आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके, और ये दोनों इस तरीके से शेयर कर लेंगे. और जब ये दोनों शेयर कर लेंगे it will form H2 which is hydrogen molecule.
इस तरह से ये फॉर्म करते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल. नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट. इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. यहाँ हमने लिया H, 1 इलेक्ट्रॉन, एक और H, अनदर इलेक्ट्रॉन, और फिर हमने क्या किया, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया वेरी कॉशियसली, लाइक दिस एंड लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हो गए इलेक्ट्रॉन शेयर हमारे. इस वाले हाइड्रोजन से पूछो तो इसके ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन से पूछो तो इसके सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है. इस तरीके से हमने बना लिया H2 और दोनों हाइड्रोजन का काम बन गया. दोनों हाइड्रोजन के पास एक इनर्ट गैस या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई जो ये अचीव करना चाहते थे. क्या ये गेन और लॉस से नहीं अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. पर कभी अगर इन्हें शेयर करना हो तो क्या ये शेयर भी कर सकते हैं? यस, दे कैन ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. दिस वॉज द मोटिव ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल दिस. अदरवाइज दे कैन इवन गेन और लॉस, कोई दिक्कत नहीं है. सिमिलरली ऑक्सीजन का केस आता है. ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनता है? तो फिर वही बात आती है. लेट अस डू इट हियर. ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, दोनों के कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इधर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर घूम रहे होंगे, एक और शेल होगी. ओके वेट. तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना दिया है विच विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, बीच में न्यूक्लियस है. ऑक्सीजन का पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. 8 है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसको और कितने चाहिए? 2 और चाहिए. इसको और कितने चाहिए? 2 और चाहिए. 2 तो इधर है, 6 इधर है, 2 हमें और चाहिए ताकि 8 हो जाए, है ना. इधर देखो, पहले यहाँ बना लेते हैं. 2, 4, 5, 6. ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स. अब ये क्या चाहता है? ये चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना. कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लूँ? एक से काम चल जाएगा? नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, 2 पेयर. तो ये ऐसा करेगा, पास पास आएंगे ये दोनों और कहेंगे मेरे पास है 8 इलेक्ट्रॉन. लेकिन 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 जब हम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी हम ड्रॉ करते हैं ना इस तरीके का शेयरिंग स्ट्रक्चर, क्या ड्रॉ करते हैं हम? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन हमें बताने हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 1 मिनट, ऐसे ड्रॉ करते हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब 6 तो इसके पास है और इसे कितने चाहिए? 2 और चाहिए. तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके का. यहाँ से भी ऐसा, ठीक है. सो दैट हर एक ऑक्सीजन से अगर पूछा जाए तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा 8. इधर भी बोलेगा 8. तो दोनों ऑक्सीजन के पास इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन्स का सेट जो है वो ज़रूरी है टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इफ़ यू वांट मी, इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी से बना देते हैं. थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐसा हो गया, तो लेट मी क्लियर द इंक एंड देन, हाँ अब यहाँ अच्छे से समझ आएगा. सो लेट अस ड्रॉ 2 ऑक्सीजन्स, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Similarly here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now you draw a structure like this and like this. So this is much clear now. अब इस तरीके से हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में दैट ड्रॉ द शेयरिंग स्ट्रक्चर, या इसको हम कहते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, draw the Lewis dot structures of the molecule of oxygen.
और ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस तरीके से क्वेश्चन पोज किए जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द लुईस डॉट स्ट्रक्चर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव। अच्छा, यहाँ पे तो हमने शेयर किया है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे आप देखो कितने पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के पास एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यू कैन क्लियरली सी हियर, यहाँ पे दिख रहा है कितने कितने पेयर हैं? 2 पेयर हैं। एक मिनट, ये वाइट कैसे हो गया? 2 पेयर हैं। हाइड्रोजन के पास कितने पेयर हैं? एक सेकेंड, ओहो, हाइड्रोजन के पास कितने पेयर हैं? ये देखो कितने पेयर हैं? एक पेयर है। ये याद रखना है कि कितने पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। एक पेयर, मेरी अब ये वाली बात ध्यान से सुनेंगे, एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो एक बॉन्ड बनेगा, देयर विल बी 1 बॉन्ड। 2 पेयर हो रहे हैं शेयर तो 2 बॉन्ड बनेंगे। इसीलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या होता है? डबल बॉन्ड बनते हैं। ऐसे ऑक्सीजन बनता है, ऐसे डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन कैसे बनता है? ऐसे सिंगल बॉन्ड से। एक शेयर्ड पेयर होगा तो एक बॉन्ड, 2 शेयर्ड पेयर होंगे तो 2 बॉन्ड। नाइट्रोजन में 3 शेयर्ड पेयर होते हैं। आप नाइट्रोजन का इसी तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। इफ़ यू नो द एटॉमिक नंबर विच इज़ 7, इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो क्या होगा? उसमें 3 बॉन्ड दिखाई देंगे, ऐसे 1 2 3। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब समझ आया डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनता है? हाइड्रोजन लिख रखा है, स्पेलिंग रॉन्ग लिख रखी है, डोंट माइंड। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। चलो अब अगला देखो, नाइट्रोजन के लिए सेम एग्जाम्पल दे रखा है। तो आई थिंक नाउ यू कैन ड्रॉ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, बहुत इजीली ड्रॉ जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या डिस्कस करना है? ये देखो 3 पेयर, तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक, ओके। अब और क्या डिस्कस करना है? वाटर मॉलिक्यूल डिस्कस करना है। वाटर मॉलिक्यूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। कैसे? देखते हैं। ये तो यहीं से समझ लेते हैं, इफ़ यू कैन सी इट। और ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस बेटर ड्रॉ इट। तो वाटर है H2O, ऑल ऑफ यू नो इट ऑलरेडी। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, बीच में ऑक्सीजन, ऐसा स्ट्रक्चर। यहाँ कितने हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ड्रॉ करना शुरू करो। आपको कितने चाहिए? ये देखो 6 इसके पास ऑलरेडी हैं, 7 और 8। तो ऑक्सीजन क्या करेगा ना, ऑक्सीजन ऐसा करेगा। ये देखो ऑक्सीजन का पूरा हो गया। हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 2 ही चाहिए, 2 ले ले हाइड्रोजन, ऐसे बना ले। ये कैसे बना लेगा? ऐसे बना लेगा। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, मैंने रैंडमली रफली ड्रॉ कर दिया कि कैसा बनेगा। नाउ हाउ विल यू ड्रॉ इट? यू विल नॉट ड्रॉ इट लाइक दिस, हियर। यहाँ पे दिस इज हाइड्रोजन, दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 और 6। और ये हो गया अगेन एक और हाइड्रोजन। ये अब हम वेरी क्लियरली देख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। हियर अब बेटर समझ आएगा। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के लिए, सो दिस इज द केस लाइक दिस। नाउ यू सी, यू कैन सी द फिगर क्लियरली। और अब ऐसे बनेगा HOH। दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। हाउ डू दे लुक? देखने में कैसे लगते हैं और होते कैसे हैं? व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर ऑफ द कंपाउंड्स? लेट अस टॉक अबाउट दैट। कोवेलेंट कंपाउंड्स, ओके। सो
covalent compounds have low melting point and low boiling points as they have weak intermolecular force. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए अगर आपको नमक के NaCl के बॉन्ड तोड़ने हों तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट होम. लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है ये कोवेलेंट कंपाउंड के लिए बहुत वीक होती है. नमक जो है उसका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है. गेन और लॉस किया हुआ जो बॉन्ड है ना, जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड इसके कंपैरिजन में काफ़ी वीक होता है. इसलिए जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है. वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो इंसुलेटर्स में आते हैं. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में शेयर्ड होते हैं इसलिए चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होते. ये वाला कोई पॉजिटिवली चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज ये नहीं बनता है, जबकि आयनिक कंपाउंड में ऐसा होता है. आयनिक कंपाउंड में एक तो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन रहता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज एनायन रहता है. ऐसा कुछ भी कोवेलेंट कंपाउंड में होता नहीं है, इसीलिए ये इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट वी डू हैव दिस versatile nature of carbon. How is carbon versatile? How does it perform different functions? Let us talk about that. Here, two characteristic properties of carbon element which lead to the formation of a large number of compound. कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं? क्यों कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि उसको एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दे दी गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि पूरी तरह से कार्बन के बारे में बात करती है. आखिर उसके इतने सारे इन्फिनिट कंपाउंड्स क्यों हैं? वो इतनी सारी चेन्स क्यों बना पाता है? वो अपने इतने सारे कॉम्बिनेशन क्यों बना पाता है? इसके हैं दो रीजंस. पहला तो है कैटिनेशन. कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, आपस में चेन बनाने की एबिलिटी, आपस में ब्रांच चेन या फिर स्ट्रेट चेन्स बनाने की एबिलिटी, जिसके वजह से कार्बन को एक ऐसा वरदान है कि वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है. वो इतने कंपाउंड्स बना सकता है जिनको वी कैन नॉट इवन काउंट कितने कंपाउंड्स बन रहे हैं. इन्फिनिट कंपाउंड्स हैं कार्बन के. कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. अपने जैसे कई कार्बन एटम्स के साथ चेन बना सकता है. वो ब्रांच चेन भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, लॉन्ग चेन भी हो सकती है, जैसा कि लिखा है ब्रांच चेन भी हो सकती हैं, क्लोज रिंग्स भी हो सकती हैं. कंपाउंड ओके, कार्बन एटम्स में भी लिंक बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. इसके ये भी खास बात है कि या तो सिंगल बॉन्ड बनाए या डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए. इसकी वजह से वी हैव न्यूमरस कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. पहले तो लॉन्ग चेन स्ट्रेट बन सकती है, ब्रांच बन सकती है, क्लोज बन सकती है, दो कार्बन आपस में बना सकते हैं, 4 कार्बन, 10 कार्बन, 10,000 कार्बन भी बना सकते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं. उस वजह से भी वेरिएशंस आती हैं. तो कई सारे कंपाउंड्स इस तरीके से तैयार हो सकते हैं. ये कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो और किसी एलिमेंट्स में दिखाई नहीं देती. टेट्रावैलेंसी भी फिर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. उसको स्पेशल इसलिए बनाता है क्योंकि इससे उसके पास सिर्फ शेयरिंग का ऑप्शन रह जाता है. 4 कार्बन एटम है तो मोनोवेलेंट एटम के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन. ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी बना सकता है. इसलिए उसको और ऑप्शंस मिल जाते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के. ये 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से कंपाउंड्स कई सारे बन सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के बन सकते हैं, क्लोज भी बन सकते हैं, ओपन भी बन सकते हैं. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन. कैटिनेशन को हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं. अच्छा, what are hydrocarbons now? Hydrocarbons, if you split the name, यहीं से समझ आ जाएगा what are hydrocarbons. Split the name, hydrocarbons. Hydro means hydro comes from hydrogen and carbon is carbon. Compounds made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbon. ऐसे compounds जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं उनसे मिलके बनते हैं, they are hydrocarbons. Very simple. 2 तरह के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं. अब हाइड्रोकार्बन्स की भी कई वैरायटी है, क्योंकि कार्बन की ही कई वैरायटी है, कार्बन चेन्स की कई वैरायटी है, इसलिए हमें हाइड्रोकार्बन की भी कई वैरायटी मिलती है. हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे. अच्छा ठीक है,
तो अब इनमें क्या क्या वैरायटीज़ आती हैं? इनमें बहुत सारे, जैसे सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं. ईदर दे कैन हैव सिंगल बॉन्ड्स और दे कैन हैव मल्टीपल बॉन्ड्स. मल्टीपल, अगर एक ही बॉन्ड है, अगर उनकी कार्बन चेन्स के बीच एक बॉन्ड है, देन दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अगर दो बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स बन जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. इस तरह की अगर कार्बन चेन है, एक सेकेंड यहाँ तो एकदम, हाँ आप समझ आएगा. अगर ऐसे कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं लाइक दिस और इवन लाइक दिस, ऐसे ऐसे चेन, ब्रांच चेन्स बनी हुई हैं, देन दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. इस तरीके का कुछ है जहाँ पे बीच बीच में डबल बॉन्ड आ जा रहे हैं या कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है, तो उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे. डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी हम उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे. सैचुरेटेड ओनली इन द केस वेयर दे हैव सिंगल बॉन्ड्स. नाउ let us talk about in detail about saturated hydrocarbons. Okay, single bond between carbon atoms like this, already told you. सिंगल बॉन्ड्स में आते हैं एल्कीन. अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तो दो कैटेगरीज हो गई कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है. सैचुरेटेड में एक ही कैटेगरी है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं. All the single bonds saturated hydrocarbons are called alkenes. इनका क्या नाम है? alkenes, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं. The general formula is very very important. CnH2n+2. क्या मतलब है इसका? CnH2n+2. n की जगह आपको 1 2 3 4 रखना है and you will get a series of alkenes. I'll tell you how. Like let us shift this and if you have this, जैसे एक एल्केन हो गया, मैंने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा? CnH2n+2. CnH2n+2. यहाँ पे हम रखते हैं 1 n की जगह पे. देन वील गेट अ कंपाउंड CH4 विच इज कॉल्ड मीथेन. C2H6 विच इज कॉल्ड इथेन. इस तरीके से 1 रखा तो मीथेन मिला, 2 रखा तो इथेन मिला, 3 रखेंगे तो CnH2n, CnH2n+2. अब क्या मिलेगा? प्रोपेन मिलेगा. इस तरीके से एक सीरीज बनती चली जाएगी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन. अब हम पढ़ेंगे कैसे ये सीरीज बनती है, कैसे हमें पता चलेगा कि पहले वाला है तो उसका नाम मीथेन ही होगा, दूसरे का नाम इथेन ही होना चाहिए, तीसरे का नाम प्रोपेन, कैसे? सो हियर यू कैन से लाइक हियर इन दिस केस देयर इज अ वर्ड रूट थिंग. वर्ड रूट होते हैं. एक कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं मेथ. 2 कार्बन है, अभी आपको नाम रखने होंगे कार्बन कंपाउंड्स के. यू विल बी हैविंग सर्टेन कंपाउंड्स और जिसको आपको नेम करना होगा. दैट इज नॉमेनक्लेचर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर इन दिस लेक्चर, लेटर इन दिस चैप्टर. सेकेंड, 2 कार्बन है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? एथ. उसके लिए वर्ड रूट है. अब इसमें एन लगाते चलना है तो बन जाएगा मेथ एन. अगर वो एल्केन है, अगर वो सैचुरेटेड है, अगर वो ये वाला जनरल फॉर्मूला यूज़ करता है CnH2n+2, अगर वो ये यूज़ करता है तो हम एन लगाते चलेंगे. इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वर्ड रूट. 3 के लिए होता है प्रॉप, 4 के लिए होता है ब्यूट, 5 के लिए क्या होगा? पेंट. सिमिलरली फॉर 6 यू विल हैव हेक्स. 7 के लिए होना चाहिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक. इससे ज़्यादा हमसे नहीं पूछने वाला. ये हो गए वर्ड रूट्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं. इसके बिना हम नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे, इसके बिना हम लेबलिंग नहीं कर पाएंगे, नाम नहीं दे पाएंगे कार्बन कंपाउंड्स को. ये तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया. नाउ लेट अस ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर डन. सो अभी हमने पढ़ा एल्केन्स जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे जिनका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2.
अब थोड़ा सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हों, या तो डबल बॉन्ड हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं या दोनों ही हो सकते हैं। तो डबल बॉन्ड वालों को, जिनके पास सिर्फ डबल बॉन्ड है, उनको हम क्या कहेंगे? एल्कीन्स। और ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या कहेंगे? एल्काइंस। So for double bond you have a general formula CnH2n. For triple bond you have a general formula CnH2n -2. तो एक बार +2 है, एक बार कुछ भी नहीं है और एक बार -2 है. This is how you remember it. एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया. एल्केन क्या है? सैचुरेटेड, जिसके पास सिंगल बॉन्ड होंगे. एल्कीन एल्काइन, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला है. Now again we know the word root, so now we can label any hydrocarbon. यहाँ आगे दे भी रखा है, they have given it like this. Alkenes ऐसे दिखेंगे, डबल बॉन्ड वाले CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड वाले alkyne CnH2n -2. This is the general formula and which is काफ़ी ज़्यादा important है. Okay, now how you again draw structures. और ये फिर से दे रखा है इन्होंने, methane, propane, butane and so on. They have drawn structures. Let us better understand this by adding a page here. And let us understand how do we label a compound. For example, you have been given this. 3 कार्बन की एक चेन है और बाकी वैलेंसी, क्योंकि अब ये एक कार्बन, एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाया हुआ है, बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा. ड्रॉ कर लेते हैं हाइड्रोजन ऐसे. ये तो दो कार्बन के साथ बनाया है, बाकी 2 बॉन्ड बचे. क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको 4 बॉन्ड्स बनाने हैं. इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे. 2 तो इसने कार्बन के साथ बनाए हैं, बाकी 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगे. यहाँ भी 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगे. अब इसका नाम रखना होगा हमें. सो वी नो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है. अभी तो हमने ब्रांच चेन का कुछ भी नहीं पढ़ा, स्ट्रेट चेन के हिसाब से चलते हैं. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? सो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स. 1, 2 and 3. एक कार्बन, दूसरा और ये तीसरा कार्बन. तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे. व्हाट विल बी द वर्ड रूट? प्रॉप. 3 के लिए प्रॉप. क्या ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं? हाँ जी, ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सैचुरेटेड हैं, तो हम लिखेंगे एन. एल्केन के लिए लास्ट में क्या ऐड होता? एन. एल्कीन होता तो लास्ट में ईन ऐड होता, ENE ईन. अल्काइन के लिए आइन, YNE आइन. तो प्रॉप एन बन गया, इसका नाम हो गया. नाउ लेट अस चेंज दिस अ बिट. यहीं पे थोड़े से चेंजेस करते हैं. लेट अस ऐड 1 मोर बॉन्ड हियर. यहाँ पे अगर एक बॉन्ड होता तब क्या होता? यहाँ पे अगर एक बॉन्ड होता तो एक हाइड्रोजन कम होता, क्योंकि और तो 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं कार्बन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर देते हैं. एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाता इन दैट केस. और यहाँ कितने? 1 2 3 4 5, ये भी 4 बना रहा है, यहाँ से भी एक कम हो जाता. ऐसा हो जाता. नंबर ऑफ कार्बन्स फिर भी सेम रहते, नंबर ऑफ कार्बन्स हमारे फिर भी सेम रहते. 1 2 3, 1 2 3. अब इसकी लेबलिंग हम करेंगे. अभी हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे. अब जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना, उसको हम पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी कि इसको हम विल इरेज दिस. अब यहाँ से 1 2 3 नहीं काउंट करेंगे. डबल बॉन्ड के सबसे पास जो आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे. 1 2 3. यहाँ से क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ से करते तो डबल बॉन्ड को मिलता कौन सा नंबर? 2nd नंबर मिलता. लेकिन हमें तो प्रायोरिटाइज करना है डबल बॉन्ड को. डबल बॉन्ड हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले. यहाँ से पहले कार्बन पे ही हमें डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, पहला कार्बन ही डबल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ से हम लेबलिंग करनी शुरू करेंगे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर. एक बार आगे इसको फिर रिपीट करेंगे. अब इसका नाम क्या होगा? अभी भी यहाँ कितने कार्बन हैं? 3 ही कार्बन हैं, तो इसका नाम अभी भी प्रॉप से शुरू होगा. पर इस बार इसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो हम एन ना लिख के लिखेंगे ईन, क्योंकि ये एल्कीन फैमिली का पार्ट है. ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम लिखते प्रोपाइन, विच इज़ द केस.
नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड और फिर हम देखते हैं. नाउ दे हैव मेड द इथेन का स्ट्रक्चर. नाउ यू कैन ड्रॉ इट. देन यू हैव द टेबल जिसमें कि वर्ड रूट सिखाया गया एंड हाउ टू लेबल अ कंपाउंड. मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. You can easily draw this. Then you have electron dot structure of unsaturated hydrocarbon जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देंगे. See, इथेन, प्रोपीन, ब्यूटेन, एल्कीन. एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे. सो स्ट्रेट चेन. अब कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई करते हैं. लेट अस क्लासीफाई कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट चेन और अनब्रांच. अगर स्ट्रेट है और कोई भी ब्रांचिंग नहीं है तो कैसे? आराम से. C3H8 है, स्ट्रेट चेन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? इसका नाम होना चाहिए, 3 कार्बन है तो इसका नाम होना चाहिए प्रॉप. और क्योंकि ये एल्केन के जनरल फॉर्मूले को CnH2n को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए इसका नाम होना चाहिए प्रॉप एन. इसके पास है सिंगल चेन, स्ट्रेट चेन. ठीक है, अच्छी बात है. इसका नाम हो गया प्रोपेन. इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं. स्ट्रेट और अनब्रांच को ऐसे क्लासीफाई कर दिया. नेक्स्ट वी डू हैव ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स. अब हमारे पास आ जाते हैं ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स. तो ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं. हमने लिखा ना ब्रांच. अच्छा, ब्रांचिंग देखो कैसे होती है. ओके, मैं यहीं पे बताती हूँ यूजिंग अ पेन. ठीक है, ये वाली कलर ठीक है. अगर मैं ऐसे कर दूँ 1 2 3 4, अगर 4 कार्बन बना दिया मैंने, सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया, तब तो ये हो गई स्ट्रेट चेन. लेकिन आप देखो यहाँ पे, देखो, लुक हियर, कैसा है? 1 2 3 4, ये तो स्ट्रेट अरेंज है. और देखो जो चौथा कार्बन है वो चौथा कार्बन दूसरे वाले से लटका हुआ है. ब्रांचिंग दिख रही है ना यहाँ? बहुत सिंपली समझ आ रही है. अगर मैं इसको सिंपली बोलना चाहूँ, बिना दिमाग लगाए आप इसका लेबलिंग करो. जल्दी से इसका नाम बताओ, क्या होगा इसका नाम? बिना दिमाग लगाए, जो आपने पीछे सीखा था, जो लास्टली सीखा था आपने, अब आप बताओ कि हाउ यू विल नेम इट. हाउ मेनी कार्बन आर देयर? सबसे पहले वर्ड रूट लिखते हैं हम. तो कितने कार्बन हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 कार्बन है. तो यू विल नेम इट एज पेंट. 5 के लिए वर्ड रूट क्या है? पेंट. और आप देख सकते हो, क्या कोई डबल बॉन्ड है? क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? एल्केन है ये, तो इसके लिए लिखेंगे एन. पेंटेन. पार्डन फॉर पुअर हैंड राइटिंग. यहाँ पे अभी आई डोंट नो, हैंड राइटिंग नहीं बन रही है. वट एवर इट इज, पेंटेन इसका नाम हो गया. 1 मिनट. पेंटेन. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ देखो ज़रा, इधर वाला, ये वाला देखो, ये वाला. लुक एट दिस, द सेकेंड फिगर. यहाँ पे भी कितने हैं? 5 ही हैं. 5 ही कार्बन है ना. हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1 2 3 4 5. 5 ही हैं. इसका नाम भी फिर पेंटेन होना चाहिए. पर समस्या ये है कि आप कैसे बताओगे कि सारे के सारे, जो पेंटेन तो चलो मैंने नाम दे दिया, पर व्हाट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम दैट यू विल फेसिंग? यू विल फेस अ प्रॉब्लम जिसमें आप नाम देख के फिर स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे. यहाँ पर आएगी दिक्कत आपको. आप ये नहीं बता पाओगे कि ठीक है 5 कार्बन तो है कंपाउंड में, पर वो 5 कार्बन कैसे अरेंज्ड हैं. क्या वो 5 कार्बन स्ट्रेट अरेंज्ड हैं, स्ट्रेट चेन है? क्या वो ब्रांच है? आप ये नहीं बता पाओगे. आप ये भी नहीं बता पाओगे कि अगर वो ब्रांच है तो कितने ब्रांचेस हैं. क्या इस तरीके से 2 ब्रांच हैं या इस तरीके से 1 ही ब्रांच है? ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे सिर्फ एक नाम से. तो इसीलिए हमने नॉमेनक्लेचर का दूसरा रूल बनाया. आई विल टेल यू व्हाट इट इज़. अभी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और फिर बताते हैं कि क्या है. दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. इसको हम कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है कि नाम तो एक जैसा दिखे पर स्ट्रक्चर अलग हो. कंपाउंड्स के जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो अलग हो. आप देखो कैसे ये चीज़ें होती हैं. जैसे मैं बोलूँ आपसे पेंटेन, तो पेंटेन कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े एल्केन हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, 5 कार्बन हैं जहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए एल्केन हैं.
आप इससे बस इतना ही बता सकते हो। क्या आप ये बता सकते हो वो स्ट्रेट है या ब्रांच? नहीं। क्या आप ये बता सकते हो कि ब्रांचिंग है तो कितनी है? नहीं। तो ये नेम ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट हुआ, क्योंकि पेंटेन के एक ही स्ट्रक्चर नहीं है। पेंटेन हम ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी पेंटेन है। इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, ये भी पेंटेन है। इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, ये भी पेंटेन है। पेंटेन हर वो चीज़ है जिसके पास 5 कार्बन है। इसीलिए हमने दिए कुछ नए नाम, और हमें नए नाम क्यों देने पड़े? बिकॉज ऑफ आइसोमेरिज्म, क्योंकि पेंटेन का एक स्ट्रक्चर नहीं है, पेंटेन के कई सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। इसीलिए हमने इस प्रोसेस ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको कहा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी कि एक ही फॉर्मूला में, मैं पेंटेन का अगर फॉर्मूला मुझे लिखना हो, मैं क्या लिखूंगी? आप बताओ, व्हाट वाज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन? CnH2n+2। तो पेंटेन का फॉर्मूला लिखो, दिस विल बी द पेंटेन का फॉर्मूला। पर क्या इससे भी आप बता सकते हो? नहीं। इस फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। गॉट माई पॉइंट? अब देखो थोड़ा सा, अब समझो कैसे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। एक तो होता है एन पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन, और एक होता है नियोपेंटेन। मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ। एन पेंटेन का मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पे एक क्वेश्चन तय है एग्ज़ाम में। ये बहुत एक तो बेसिक भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो अगर आप फर्दर 11th में या 12th में आप लेते हो साइंस, तो आपको इसे पढ़ना पड़ेगा इन वेरी मच डिटेल। इसलिए ये बहुत बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप बहुत ध्यान से सुने। एन पेंटेन पहला आइसोमर है, एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब होता है नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, नॉर्मल वाली। अच्छा, नॉर्मल वाली बताओ ना फिर कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, है ना, और उसको आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। मैंने पहले भी बताया है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। इसी तरह आप हर कार्बन को देखो, वो 4 बॉन्ड बनाएगा अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। देखो, क्या हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं? एकदम स्ट्रेट चेन में मैंने 5 कार्बन को अरेंज किया है, विच विल बी कॉल्ड एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन। समझ में आया सबको? आगे बढ़ जाए। ये नॉर्मल पेंटेन है, ये वो वाली पेंटेन है जो हम सब बनाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आइसोपेंटेन क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा। आइसोपेंटेन और ध्यान से समझने वाली चीज़ है ये, ठीक है। आइसोपेंटेन क्या होती है? देखो, 1 2 3 4 5 मैंने ऐसे अरेंज कर दी, ठीक है, मैंने ऐसे अरेंज कर दी पेंटेन। तो अब आप देखो, ध्यान से देखो, मुझे बताओ कितनी स्ट्रेट चेन है, कितनी लंबी स्ट्रेट चेन है, जल्दी से बता दो। ये देखो, ये है ना 3 कार्बन की लंबी स्ट्रेट चेन, ये देखो, और 2 कार्बन कैसे लटके हुए हैं। अच्छा, अब आप सोचो कि यार कैसे पता करूं कि ये आइसोपेंटेन है, क्या ये आइसोपेंटेन है, कैसे पता चलेगा? देखो, इस तरीके का शेप अगर बने ना, इस तरीके का शेप बने, देन इट इज आइसोपेंटेन, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो, यार ये देखो ऐसी पूरी एक ब्रांच है, 4 की ब्रांच हो, सॉरी 4 की स्ट्रेट चेन हो और एक ब्रांच हो सेकेंड कार्बन पे। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इस तरीके का स्ट्रक्चर हो तो भी वो आइसोपेंटेन है, ये वाली भी आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन कब होती है मैं बताऊं, एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि व्हेन डू यू कॉल इट कि ये आइसोपेंटेन है। एक बार के लिए रुक जाओ, ठीक है। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया जब आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन को आप कब कहोगे? जब ऐसे 4 कार्बन की चेन हो और दूसरे वाले कार्बन पे एक ब्रांच हो। मेरी बात समझ में आई? मैं ब्रांच तभी कहूँगी जब उस ब्रांच से कार्बन लटक रहा होगा। जब हाइड्रोजन होगा तो मैं उसे ब्रांच नहीं कंसिडर करती हूँ। कई लोगों को हो सकता है ये कन्फ्यूजन हो कि मैम ये भी तो ब्रांचेस हैं, ये भी ब्रांचेस कंसिडर करने लगेंगे। इसको ब्रांचेस नहीं कंसिडर करना। हाइड्रोजन की ब्रांच को ब्रांच नहीं मानते हैं हम। ब्रांच उसी को मानते हैं जो कार्बन वाली होती है, ठीक है।
गॉट माई पॉइंट? ये किसी को अगर कन्फ्यूजन था तो ये क्लियर हो गया होगा यहीं पे, ठीक है। आइसोपेंटेन, अगेन आई एम रिपीटिंग, आइसोपेंटेन तभी बनेगी जब 4 की स्ट्रेट चेन होगी, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी। ऑन द वेरी सेकेंड कार्बन यू विल हैव अ ब्रांच। ब्रांच किसकी? एक कार्बन की ब्रांच। हाइड्रोजन की ब्रांच को ब्रांच नहीं बोलते। दिस इज आइसोपेंटेन। अब ये कन्फ्यूजन भी हो सकती है, तो मैम ये कैसे है, फिर ये आइसोपेंटेन कैसे है ना? देखो, क्या ये स्ट्रेट चेन नहीं है? इज इट नॉट अ स्ट्रेट चेन? देखो, थोड़ा सा एंगल बदल के देखो, ये स्ट्रेट ही चेन तो है। इसमें कहाँ ब्रांच है? सेकेंड वाले कार्बन पे देखो एक ब्रांच लटक रही है। जब भी ऐसा हो, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, सेकेंड वाले पे ब्रांच लटके, देन इट इज आइसोपेंटेन। देन द वेरी थर्ड आइसोमर दैट यू विल गेट इज नियोपेंटेन। नियो मतलब क्या होता है? न्यू। नियो मतलब होता है न्यू। जस्ट आपको याद रहे, मैं इसलिए बता रही हूँ। नियोपेंटेन, न्यू पेंटेन। पेंटेन ऐसे भी तो बन सकती है, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो और 2 ब्रांचेस हो, वो भी सेकंड कार्बन पे। अभी तक सेकंड कार्बन पे 1 ब्रांच होती थी, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती थी। डिफरेंस समझ आ रहा है? वो आइसोपेंटेन थी, ये नियोपेंटेन है, जिसमें एक कार्बन चारों तरफ से कार्बन से घिरा है। बाकी सारी वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाई कर लो। कितनी है? 2, 3 और 1 4, सबकी सेटिस्फाई कर लो। 1, 2, 3, इसकी वाली भी, ये भी एक ही से जुड़ा है ना, तो इसकी भी 3 होगी, है ना? इस तरह से सेटिस्फाई करते जाओ, बनाते जाओ। इधर भी 3 होगी। तो ये थोड़ा सा मैसी हो गया, इसके लिए ना रुक जाओ। ये वाला देखो, लुक एट दिस फिगर, ये समझ आ रहा है? दिस इज नियोपेंटेन। आई होप इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं। दिस इज नियोपेंटेन। होता है कई बार क्या है ना कि हम हाइड्रोजन दिखाते नहीं हैं। यहाँ हाइड्रोजन मैं बना दे रही हूँ, आप देख लो, ठीक है? ये ज़्यादा क्लियर हो गया। 1, 2, 3 और एक यहाँ पे जुड़ा रहेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसी तरह से चौथा भी। तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान देना है कार्बन पे। आपको ध्यान देना है कार्बन पे। क्या कार्बन अपनी 4 वैलेंसी को पूरी कर रहा है? क्या अगर एक कार्बन से लगा हुआ है तो क्या उसकी बाकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है? येस और नो, ठीक है? और आपको कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। दिस इज़ द पिक। इफ़ यू वांट टू टेक रेफरेंस, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है? इसको थोड़ा सा जूम कर लो तो फिर दिख जाएगा, और या तो मैं ही जूम कर दूँ, एक एक दिखा दूँ। ये देखो, एन पेंटेन हो गया, ये गॉट इट। ये हो गई आइसोपेंटेन। दिख गई सबको? मुझे लगता है सबको दिख गई, बहुत क्लियर भी है। ये देखो, दिस इज नियोपेंटेन। बस आपको कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर ये वाला है नियोपेंटेन का, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर हियर। दिस इज आइसोपेंटेन फॉर यू, दिस इज नियोपेंटेन फॉर यू, एंड यू नो द एन पेंटेन। स्ट्रेटली 5 कार्बन अरेंज कर दो, हो गया नियोपेंटेन, अरे सॉरी नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, कि एक ही फॉर्मूले के आप कई स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिमिलरली मुझे बताओ, ये तो हो गया पेंटेन का स्ट्रक्चर, ब्यूटेन का कितना स्ट्रक्चर बन सकता है? ब्यूटेन की अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड इसको साइड कर दूँ, चलो इधर देखो। अगर मैं ब्यूटेन की बात करती हूँ, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4। वर्ड रूट याद होनी चाहिए। मेथ 1, एथ मतलब 2, प्रॉप मतलब 3, देन ब्यूट मतलब 4, ये पता होना चाहिए सबको, ठीक है? 10 तक पता होना चाहिए। ब्यूटेन 4। एक तो मैं सीधे सीधे अरेंज कर दूँ, एक तो मैं 3 को सीधे, एक तो ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर हम और कैसे कर सकते हैं? 3 को सीधे कर दें, एक को ब्रांच कर दें। कोई कहेगा मैम यहाँ से ब्रांच लटका दो, किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ से नहीं मैम, यहाँ से ब्रांच लटका दो। तो यार ये भी तो स्ट्रेट चेन हो गई, देखना, देखो बताओ मुझे, क्या ये वाली स्ट्रेट चेन नहीं हो गई? ये देखो, एकदम स्ट्रेट ही तो है ये, इसमें कहाँ कोई लटक रहा है? कोई नहीं लटक रहा, देखो सीधे। बस इसको मैंने मोड़ के ऐसे कर दिया। मोड़ने को नहीं कहते हैं, ब्रांचिंग को कहते हैं ब्रांच्ड। ये ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर ही है। किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी न्यू चैप्टर फॉर यू, ठीक है?
बहुत न्यू कंसेप्ट है सभी के लिए, तो आपको ऐसी बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं कि ये भी तो ब्रांच है, लेकिन देखो ना 1 2 3 4 यहाँ कहाँ ब्रांचिंग है, कहाँ ब्रांचिंग है, कहीं है ऐसा लटकता हुआ? नहीं है। तो ये आपका ब्रांच स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं बता दूं। ठीक है, एक हो गई नॉर्मल ब्यूटेन, फिर बात करती हूँ आइसोब्यूटेन की। आइसोब्यूटेन बना सकते हैं क्या? देखो 1, अरे यार ग्रीन वाला, ग्रीन ही ले ले क्या? चलो 1 2 3 मान लो ऐसा बना दिया, ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है। इससे ज़्यादा क्या कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? किसी के दिमाग में ये आ रहा है क्या? अरे बताओ, अगर किसी के दिमाग में ये वाला स्ट्रक्चर भी आ रहा है, जल्दी बताओ। बहुत लोग होंगे जिनके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, ये भी तो कर सकते हैं। फिर से मैं वही बोलूँगी कि ये तो स्ट्रेट चेन है ना, 1 2 3 4, इसमें ब्रांच कहाँ आई? इसमें तो ब्रांच आ रही है, देखो 1 2 3 और ये चौथी ब्रांच, इसमें स्ट्रेट है 1 2 3 4, ये स्ट्रेट ही है बच्चे, इसको बस मोड़ दिया गया है। तो अगर किसी के मन में फिर से ऐसा डाउट आ रहा है तो एक बार इसको देख लो, ये स्ट्रेट ही है, दिस इज़ वेरी स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट ही है, बस इसको मोड़ दिया गया है। मुझे बताओ, एक रोप ले लो, एक रोप ले लो, एक रस्सी ले लो, उसको अगर आप मोड़ के रख देते हो तो क्या वो बीच से टूट जाती है क्या? क्या उसमें ब्रांचिंग आ जाती है क्या? बताओ। नहीं, उसमें ब्रांचिंग नहीं आती है, उसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं आती है। जैसे आप एक रस्सी ले लो, एक रस्सी, रुक जाओ, रस्सी बना दी मैंने, इस रस्सी का ये हल कर लो मोड़ के, तो इसमें ब्रांचिंग आ जाएगी क्या? इसमें ब्रांचिंग आ गई क्या? इसको मोड़ देने से, इसको ऐसे रख देने से ब्रांचिंग आ जाएगी क्या? चेन है या रोप है तो वो तो स्ट्रेट ही रहेगी ना। मोड़ने से ब्रांचिंग नहीं आती है, टर्न करने से ब्रांचिंग नहीं आती है। ब्रांचिंग अगर ऐसे आती है, अगर ये रस्सी होती और यहाँ से एक और रस्सी लटक रही होती, इसको ब्रांच कहते हैं। यहाँ से एक और रस्सी ऐसे लटक रही होती, यहाँ से कोई और रस्सी लटक रही होती, इसको ब्रांचिंग कहते हैं, ना कि इसे। ये ब्रांचिंग नहीं है, ये भी ब्रांचिंग नहीं है, ये तो और स्ट्रेट ही है। गॉट माई पॉइंट? समझ में आई बात? ब्रांचिंग किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है, ये पूरा आपका बेस बनाएगा, बेस फॉर केमिस्ट्री। नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप जो भी पढ़ेंगे समझेंगे उसका ये बेस है। ठीक है, स्पेसिफिकली कार्बन से रिलेटेड जितनी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ये। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। इवन इफ आपको साइंस नहीं लेना है 11th 12th में फर्दर, फिर भी आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें क्योंकि इसकी वेटेज बहुत हाई है, इवन इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बात समझ आ गई? चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया, आइसोमेरिज्म पूरा। अच्छा, इधर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ। These 3 above compounds have, has लिख रखा है इन्होंने, have होगा क्योंकि प्लूरल है, एनीवेज ग्रामर क्लास नहीं चल रही है। have same molecular formula, इनका फॉर्मूला सबका C5H12 ही है। दिस इज कॉल्ड मॉलिकुलर फॉर्मूला, इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, इसको हम मॉलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। आपने देखा ना अभी पूरा, मैंने पूरा कितने बार रिपीट किया, आपको समझ आया ना कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रेट है एक ब्रांच्ड है। इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इनको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इस फिनोमेना को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इनको कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई रिपीटेड, आई डोंट नो। ठीक है, देखो अब साइक्लिक भी एक चीज़ होती है। ठीक है, तो अभी तक तो हम कह रहे थे कि चेन बताओ कैसी है, या तो स्ट्रेट है ऐसी, या तो ब्रांच है ऐसी है। अब मैं कहूँगी नहीं नहीं, ये सब नहीं, अब मैं कहूँगी कि साइक्लिक हो जाए, ऐसे 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 जुड़ी रहे, मतलब एक रिंग बना ले, एक रिंग बना ले, क्लोज रिंग बना ले, तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। वहाँ हम कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे आप यहाँ देखो, साइक्लिक में सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अगर सारे सिंगल बॉन्ड आप देख पा रहे हो ना, साइक्लिक सैचुरेटेड। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्या? साइक्लिक, ओहो सॉल्यूटेड लिख रखा है, इसको हटाओ।
ये देखो यार, अगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं जहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, 6 कार्बन की एक रिंग हो, एक साइकिल हो, तो अगर यहाँ सब में सिंगल बॉन्ड्स हैं, अगर सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड तो है ही, कैसा साइक्लिक है? सैचुरेटेड वाला। ये देखो, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड्स ऐड कर दिए। अब ये कैसा होगा? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, साइक्लिक तो है ही ना, दिख रहा है सबको, रिंग बन रही है, ठीक है। रिंग वाले कंपाउंड्स को साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, नहीं है तो सैचुरेटेड, सीधी बात, ठीक है। इतना सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद ओहो, ठीक है, ये देखो। अच्छा, इसका ना एक स्पेसिफिक नाम होता है, इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। अगर हम 6 कार्बन कंपाउंड्स लें इस तरीके से, 6 कार्बन कंपाउंड्स ले लें और उनके बीच ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बना लें। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। अगर मैं 6 कार्बन की एक साइक्लिक कंपाउंड ले लूँ, ये वाली, और इनके बीच ऑल्टरनेट कार्बन्स पे डबल बॉन्ड हों ऐसे, तो इसका एक बहुत स्पेसिफिक नाम होता है बेंजीन। और ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किंग है। सब कुछ, सारे कंपाउंड इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इसका नाम है बेंजीन, जो हम याद रखेंगे। 6 कार्बन की एक साइक्लिक कंपाउंड जिसके ऑल्टरनेट कार्बन्स पर डबल बॉन्ड हों, ऐसी कंपाउंड को हम बेंजीन कहते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो अगर कोई पूछे तो बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड होती है, वो आपको दिख रहा है। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, वो भी आपको दिख रहा है। बेंजीन में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, वो आपको दिख रहा है। कितने हैं? 6 है ना। और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, इस वाले कार्बन को पकड़ो जरा, देखो 3 बॉन्ड ये कार्बन साथ बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन साथ बनाएगा, ये भी 3 कार्बन के साथ, ये भी 3, एक ये लोग हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड ऐसे ऐसे बना रहे होंगे। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। आई होप सबको समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। जितनी वैलेंसी बचेगी सब हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है। ऑल ऑफ यू ऑल नो दैट। ये देखो सेटिस्फाई करके भी दिखा दिया है इन्होंने। आई होप इट इज़ क्रिस्टल क्लियर नाउ एवरीवन। पूरा फुल स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हेक्सेन है ये, साइक्लिक हेक्सेन। ये देखो 6 है ना इसमें कार्बन, इसमें 6 होंगे, ऑल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड होंगे। इसका स्पेसिफिक नाम, स्पेशल नाम क्या है? बेंजीन। इसको याद रखेंगे एवरीवन। आओ चलो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप ना जैसे कोई स्पेसिफिक चीज़ है। स्पेसिफिक कैसे, मैं बताती हूँ। आई होप यू लाइक्ड माई प्रेजेंटेशन। इफ सो, डू कंसिडर लाइकिंग, commenting, sharing it with your friends and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.